Hello students, how are you? Hope you are fine at your places. So students, today we are going to start our second unit of our syllabus, that is database query using SQL. So students, in class plus one, we discuss what is database and what is database queries, how to create database, how to use database, how to insert data into a table, how to update data, and how to delete data. Now students, in class plus 2, here there is some functions which we will discuss, which can be applied on a table, which can be applied on a data. So let me start our topic. First students, what is database? What do you understand by database? Database is a set of data information, and that data can be easily accessed, managed, and updated. As we already done in class plus one, we access the data from a table, we update that data, we delete some contents from that table. So that is database. Students, when we manage some data on manually on a paper, like the record of a student, we maintain a register, then that is manual database, in which we write the name of the student, roll number of the student, admission number of the student, student address, and other information related to students. That is manual data. Now when we have to arrange this data, when we have to store this data in computer, that is DBMS, database management system. So we require a software to store this data into computer. uh, in our case we are using MySQL. We use MySQL. So students, there is some examples, real life examples, where we create a database. First, the example is a student enrollment system of a school. In a school, when we enroll students, then we write their data on a register. We maintain a register for student enrollment, in which we write the admission number of student, name of student, address of student, date of admission of student. This type of information we store on a register. That is manual database. And when we have to maintain this data into a computer, then we use a software that is called DBMS, database management system. And we are using MySQL for record keeping of a student. We use MySQL, in which we will create table. हमने क्लास प्लस वन में ऑलरेडी इसको कर रखा है कि हमने डाटाबेस कैसे बनाना है, हमने स्टूडेंट के लिए टेबल कैसे बनाना है. In a database there is multiple elements, and a table is the one of them. We write the queries, we create the forms, we can create tables. All these are the elements of a database. So first example is student enrollment system. Secondly, employee payroll system. Suppose there is a firm, or in our school, we maintain the database of our employees. Name of employees, employee number, salary paid to employees, for how much months we have paid, for how many months there is pending. All this type of things we can record in a table, or we can create a database for an employee. In banking system, third example of database is banking system. Students, in a bank, we open a bank account, and when you will open a bank account, then you give some details, like your name, your address, your Aadhaar card number, ID proof, like this information is stored in a table, and that table is under a database. So on background there is a database. So database play an important role when you are using any software. When something is computerized, it means there is database. On background it is working, that is in back end. There is two ends of a software, front end and back end. On back end there is database, and on front end there is interface.
जिस इंटरफेस को यूज करके आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं वो इंटरफेस है उसका। तो बैंकिंग की एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी कि हम जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उस बैंक अकाउंट में जो हमने डिटेल्स दी है, जो हमारी डिटेल्स है, कितनी सेविंग हुई है, और वो जो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, वो बैकग्राउंड कहाँ पे सेव हो रहा है, डाटाबेस के किसी टेबल में। नाउ फेसबुक की एग्जांपल हम ले सकते हैं। फेसबुक पे जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, जो भी आप फेसबुक पे कर रहे हो, आप कोई डाटा शेयर कर रहे हो, वो डाटा चाहे वो आपका वीडियो है, चाहे वो इमेजेस है, चाहे वो टेक्सुअल डाटा है, इट विल create a table, it will create a database all for all these activities। जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो उन सब का एक डाटाबेस मेंटेन हो रहा है, और उस डाटाबेस से आपकी एक्टिविटीज जब मर्जी थ्रू आउट लाइफ, जब तक आपका वो एग्जिस्ट कर रहा है फेसबुक अकाउंट, तब तक कभी भी देखा जा सकता है। तो जितने भी फेसबुक के ऊपर आपकी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है बैकग्राउंड में, और उसको मैनेज कर रहा है डाटाबेस। तो वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट बैकग्राउंड में वो काम चल रहा है। मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट, अब मोबाइल में हमने अपना डाटा स्टोर किया है, तो मोबाइल में हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बैकग्राउंड में एक डाटाबेस की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एक टेबल बन रहा है, और उस टेबल के ऊपर जो जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, जब भी आप किसी का कॉन्टैक्ट स्टोर करते हैं तो वो उसके बारे में पूछता है कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर या अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या ऐड करनी है, उसका ईमेल एड्रेस, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स इट विल स्टोर ऑन बैकग्राउंड। आप अपने मोबाइल में जाके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो सारा बैकग्राउंड के ऊपर वो उसको मैनेज कर रहा है, तो वो भी बैकग्राउंड में डाटाबेस की फॉर्म में अवेलेबल होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम किसी मॉल में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं जो कि कंप्यूटराइज है, आपने वहाँ पे क्या परचेज किया, उसकी जो बिलिंग हो रही है वो कंप्यूटराइज है, आपके बिल जनरेट करके वो आपको दे रहे हैं। तो उसके लिए बैकग्राउंड पे डाटाबेस बन रहा है। इन फ्यूचर कभी भी आप उसको निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने अपनी बिलिंग चेक करनी है, या 1 महीने पहले 2 महीने पहले मैंने क्या परचेज किया था, वो उनके सिस्टम में डाटाबेस की फॉर्म में रिकॉर्ड रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की डेट में यहाँ भी डाटा यूज हो रहा है, यहाँ भी आप कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो बैकग्राउंड में वहाँ पे डाटाबेस काम कर रहा है। तो आज की डेट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें डाटाबेस काम नहीं कर रहा है। आप कोई भी रियल लाइफ की एग्जांपल उठा के देख लो, उसके बैकग्राउंड में यहाँ भी रिकॉर्ड बन रहा है, यहाँ भी रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, देयर विल बी ए डाटाबेस। सो database play an important role in our life. So let we discuss through examples. For this we are using MySQL। स्टूडेंट, हम MySQL को यूज करेंगे, हमारे सिलेबस में है MySQL। तो MySQL को आपने इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद हम MySQL को लॉगिन करेंगे। इंस्टॉलेशन टाइम जो भी आपने उसका पासवर्ड दे रखा है, तो हम वो पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और MySQL जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये MySQL यहाँ पे आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं MySQL प्रॉम्प्ट आ गया। नाउ फर्स्ट वी रिक्वायर ए डाटाबेस। First, how to create a database? Student, to create a database, we use command create database, then database name। जिस भी नाम का आपने डाटाबेस क्रिएट करना है वो नाम आप यहाँ पे दे दो। स्टूडेंट्स, मैंने स्कूल नाम दिया, लेकिन इसने एरर दे दी, कांट क्रिएट डाटाबेस स्कूल, डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब सम स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि जिस नाम का एक बार डाटाबेस बन गया, उसी नाम का आप दूसरी बार डाटाबेस नहीं बना सकते हैं। इट मींस इट इज ए यूनिक नेम। तो डाटाबेस क्रिएट करने की कमांड आपको बतानी थी मैंने मेरा पर्पस था कि हाउ टू क्रिएट डाटाबेस। तो फॉर दिस यू विल राइट क्रिएट डाटाबेस एंड देन डाटाबेस नेम। सो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको स्कूल 1 देता हूं, तो ये मैसेज आ जाएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। तो डाटाबेस जो है वो हमारा क्रिएट हो गया। हाउ टू सी द लिस्ट ऑफ डाटाबेस। अब मेरा MySQL जो फोल्डर होगा उसमें कितने डाटाबेस बने हैं, मैंने अगर वो चेक करना है, फॉर दैट पर्पस वी यूज कमांड शो कमांड, शो डाटाबेसेस।
Students, this command is used to display the list of all databases. अब मेरा जो MySQL जो मैंने इंस्टॉल किया है उसमें ये डाटाबेस ऑलरेडी है। इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, Sakila, School 1, Sys and World. These databases already existing in my system. So School और School 1 मैंने बनाया है, और जब हमने MySQL को इंस्टॉल किया तो सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट ये बाकी के डाटाबेसेस जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्कूल को यूज़ करेंगे। स्कूल ऑलरेडी मैंने बना रखा है, स्कूल डाटाबेस। तो सबसे पहला काम है आपने उस डाटाबेस को यूज़ करना है। डाटाबेस एक ही बार बनाना है आपने। देन आफ्टर दैट जब भी आपको वो टेबल्स चाहिए उसके यूज़ करने हैं आपने, तो उसके लिए आप यूज़ कमांड करोगे। तो फर्स्ट कमांड यू विल यूज़ देन डाटाबेस नेम। कौन सा डाटाबेस आपने यूज़ करना है, यहाँ पे उस डाटाबेस का नाम लिख के टर्मिनेटर। तो स्टूडेंट्स, डाटाबेस चेंज्ड, ये मैसेज आएगा। अगर ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, इट मींस यू आर इन स्कूल डाटाबेस। इफ यू हैव टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल्स अंडर दिस डाटाबेस। अब स्कूल डाटाबेस में हमने कौन कौन से टेबल्स बनाए हैं, तो उसके लिए भी आप शो टेबल्स कमांड यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने अभी एक ही टेबल बनाया है, वो है स्टूडेंट नाम का टेबल मैंने बना रखा है। इसमें हम इस टेबल के ऊपर जो भी हमारे इस टॉपिक में कंटेंट्स हैं वो है हमारे फंक्शंस, वो हम इसके अंदर करेंगे। इस टेबल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे फंक्शंस। सो हम स्टूडेंट टेबल बना रहा है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम डिस्क्राइब कमांड यूज करते हैं। +1 में आपने ये सारा किया हुआ है। ये रिवीजन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट डिस्क्राइब को शॉर्ट में आप DESC लिख सकते हैं। इट विल डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। ये टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि कौन सा टेबल है। स्टूडेंट टेबल है, फील्ड कौन कौन सी है उसके, फील्ड है उसके रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड मार्क्स। रोल नंबर की टाइप है इंटीजर टाइप, और नेम की टाइप है वेरिएबल करेक्टर 20 इज द लिमिट, 20 करेक्टर्स तक आप इसमें डाल सकते हैं। देन एड्रेस, वो भी करेक्टर टाइप है। मार्क्स डेसिमल, मार्क्स जो है वो हम डेसिमल प्लेसेस में डाल सकते हैं, उसको मैंने दिया 5,2। स्टूडेंट, डेसिमल में जो आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखोगे, जो पैरामीटर्स लिखोगे, वो है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। अब इंक्लूडिंग डेसिमल प्लेसेस टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 5। इट मीन इसमें 2 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट में होंगे, और 3 जो है वो इंटीग्रल पार्ट में होंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा डेसिमल से पहले इंटीग्रल पोर्शन, उसके अंदर आप 3 डिजिट्स में वैल्यू डाल सकते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा आफ्टर डेसिमल आप 2 डिजिट्स लिख सकते हैं। तो ये 5 टोटल, 3 + 2 5, और डेसिमल प्लेसेस में आएंगे 2। तो नल वैल्यू, नल इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। यस 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 यस, सबके लिए हमने यस किया है, आप इनको नल छोड़ सकते हैं। रोल नंबर की, स्टूडेंट्स हमने +1 में किया था प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की। तो इसमें हमने किसी को भी कोई की अप्लाई नहीं की है। अगर ये प्राइमरी की होता तो हम उसको नल नहीं छोड़ सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं डालोगे रिकॉर्ड में, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होएगी। तो इंसर्ट कमांड आपने सबसे पहले हम यूज़ करते हैं जब भी हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम यहाँ इसमें इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, टेबल क्रिएट करना आपको आता होगा, +1 में हमने किया है क्रिएट टेबल। नहीं तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर क्रिएट टेबल कमांड बता देता हूँ। क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। तो मैंने इसमें एक और टेबल जो है वो क्रिएट कर दिया, मैंने उसको नाम दिया STU। क्रिएट टेबल STU, देन एंटर स्टार्ट। द फर्स्ट फील्ड नेम, द फर्स्ट फील्ड इज सपोज एडमिशन नंबर। स्टूडेंट, फील्ड नेम के बीच में स्पेस नहीं आएगा। फील्ड नेम आपको इकट्ठा लिखना पड़ेगा, या फिर आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, फील्ड अंडरस्कोर एडमिशन अंडरस्कोर नंबर। देन इट्स लिमिट, डाटा टाइप, कितनी डाटा टाइप होगी, इंटीजर टाइप, और कितनी लिमिट है इसकी, 6 डिजिट्स की। देन कॉमा, सेकंड
the name of student, this is variable character, वेरिएबल करेक्टर कितने 20 करेक्टर्स का नाम आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी लिमिट आप दोगे तो उतने करेक्टर तक आप इसमें डाल सकते हैं। देन एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, ADDR एड्रेस, वेरिएबल करेक्टर एड्रेस मैंने 25 का मैंने डाल दिया। सपोज ये टेबल है और उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, राउंड ब्रैकेट जो यहाँ पे स्टार्ट की थी वो यहाँ पे मैंने उसका एंड कर दिया। नाउ टर्मिनेटर, स्टूडेंट कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो टर्मिनेटर के साथ उसका एंड होएगा। अब इसका एंड हो गया तो यहाँ पे आ गया क्वेरी ओके, तो हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। नाउ यू कैन सी द लिस्ट ऑफ टेबल्स, शो टेबल्स, शो टेबल्स। अब स्टूडेंट इसमें दो टेबल आ रहे हैं, एक STU और एक स्टूडेंट। STU में हमने कोई वैल्यू नहीं डाली हुई है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं, सेलेक्ट कमांड यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आपने स्टूडेंट टेबल देखना तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये डाटा डाल रखा है, 6 रिकॉर्ड्स उसमें मैंने डाल रखे हैं। इफ यू आर राइटिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU टेबल मैंने अभी क्रिएट किया है, तो अभी ये एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। स्टार मीन ऑल रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे डिस्प्ले करेगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, स्टार आपने +1 में किया है। अगर आपने सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स ही डिस्प्ले, सिलेक्टेड कॉलम्स ही डिस्प्ले करने हैं, तो यहाँ पे हम कॉलम्स की लिस्ट देते हैं। सेलेक्ट, सपोज यू हैव टू डिस्प्ले नेम एंड एड्रेसेस, सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट के इसने नेम और एड्रेस डिस्प्ले कर दिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कमांड्स थी जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इंसर्ट कमांड आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। क्या क्या आपने इसमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हम सारे फील्ड्स का नाम दोगे। तो पहला हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर इंटीजर टाइप है तो विदाउट कोटेशन लिखना है। उसके बाद नेम है तो इसको आपको कोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो नेम क्या है, यहाँ पे आप नेम की एंट्री कर दोगे। सपोज मेरा नाम है राजन, तो मैंने राजन की एंट्री कर दी यहाँ पे, राजन। देन एड्रेस इज फ्रॉम ऊना, इट इज आल्सो स्ट्रिंग टाइप, सो यू हैव टू राइट इन कोटेशंस, सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, डबल में भी लिख सकते हैं। देन मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स राजन ऑब्टेन्ड, मैंने लिख दिया 89.45। तो ये भी मेरा नंबर टाइप है, डेसिमल जो है वो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो हमने एंटर कर दी और यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया। तो आप देखोगे आउटपुट में आ गया क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, इट मीन्स कि एक रो यहाँ पे ऐड हो गई है। आप सेलेक्ट कमांड लगा के इसको देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी मैंने ये रिकॉर्ड जो एंटर किया है वो यहाँ पे आ गया, 7th राजन ऊना और 89.45 जो मैंने इसमें अभी मार्क्स डाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थोड़ा सा रिवीजन कि लास्ट ईयर हमने क्या क्या डिस्कस किया, रिकॉर्ड इंसर्ट किए, रिकॉर्ड एक्सेस किए हमने। नाउ इन क्लास +1 देयर इज फंक्शंस, सो नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस इन MySQL। स्टूडेंट्स फंक्शंस हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी किए हैं, फंक्शंस जिनको हमने मेथड बोलते थे, मेथड और फंक्शन एक ही चीज है, यहाँ पे हम उनको फंक्शंस बोल रहे हैं। तो फंक्शंस क्या है, इट इज प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस टू ऑब्टेन ए सिंगल वैल्यू एज रिजल्ट। फंक्शंस प्री डिफाइंड कमांड्स है जिनको आप रन करोगे। यहाँ पे हम फंक्शंस जब भी आप लिखते हो आपको पता है कि ये राउंड ब्रैकेट में होते हैं, राउंड ब्रैकेट में हम इनको यूज करते हैं और उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। So SQL provides a large collection of inbuilt functions. Now students, you know there is two type of functions, user defined function and inbuilt function. User defined function, the function which are defined by user. By using a programming language you can create your own function. हम अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं
और सपोज हमारी कुछ कमांड्स जो है वो बार बार यूज हो रही है, देन वी राइट दैट कमांड्स इन द शेप ऑफ फंक्शंस एंड देन वी विल कॉल दैट फंक्शन, हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन जो ऑलरेडी हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, ऑलरेडी बने हुए फंक्शन है, वी हैव टू जस्ट यूज दैट फंक्शंस बाय पासिंग आर्गुमेंट, बाय पासिंग पैरामीटर्स, हम वैल्यूज पास करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली, उन फंक्शंस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके हमें डाटा अवेलेबल करवाएगा, इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल करवाएगा। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड library functions that can be used directly with SQL statements for performing calculation on data. So MySQL supports many functions to manipulate data. The values that passed in functions are known as arguments or parameters. Students, जो राउंड ब्रैकेट में हम यहाँ पे जो कॉलम नेम लिख रहे हैं, ये आर्गुमेंट्स होंगे इसके बीच में, it will contain the list of arguments or parameters and this is the function, ये फंक्शन का नाम होएगा। दिस इज द सिंटेक्स फॉर ए फंक्शन। मैंने किसी टेबल के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए मैंने जो सिंटेक्स है कमांड लिखूंगा सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड के साथ हम फंक्शंस को यूज करेंगे। सेलेक्ट देन फंक्शन नेम, कौन सा फंक्शन आपने यूज करना है, देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, उस फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर्स आपने पास करने हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, इसमें मैथमेटिकल फंक्शन है उनके पैरामीटर्स अलग है, स्ट्रिंग फंक्शन है उनके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, अगर आपने किसी टेबल के ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको टेबल नेम देना है। अगर आपने कोई फंक्शन जो है वो डायरेक्ट किसी वैल्यू के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो यहाँ पे टेबल नेम लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 जो है उस केस में ऑप्शनल हो जाएगा, तो हम सीधा लिखेंगे सेलेक्ट फंक्शन नेम और टर्मिनेटर लगा के उसकी वैल्यू हम कलेक्ट कर लेंगे। सपोज किसी स्ट्रिंग की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम वहां पे लिख देंगे लेंथ देन स्ट्रिंग नेम, तो उस सेलेक्ट लेंथ एंड स्ट्रिंग नेम, इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। नाउ सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए कॉलम, पूरे कॉलम में जो एंट्रीज हमने की है सबकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें वो लेंथ फंक्शन जो है वो टेबल के ऊपर हम लगाएंगे। सो लेट वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, in SQL there is two type of functions, there is two categories of functions, single row functions and multi row functions. Students, multi row functions are also called aggregate functions. Single row functions, the functions which are applied on a single row, जो एक एक रो के ऊपर अप्लाई किया जाता है, किसी टेबल में जो फंक्शन एक एक रो के ऊपर एप्लीकेबल होगा दैट इज सिंगल रो फंक्शन, जो मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होंगे वो मल्टी रो फंक्शंस है। सपोज आपने मल्टीपल वैल्यूज हैं उनका सम करना है, तो वो जो सम करने के लिए जो फंक्शन आप लगाओगे तो वो मल्टी रो होगा। आपने एवरेज निकालनी है मल्टीपल रो से तो वो मल्टी रो फंक्शन हो जाएगा। तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट इज इन सिंगल रो देयर इज न्यूमेरिक फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन। जो मैथ्स के फॉर्मूलाज है, जो मैथ्स के फंक्शंस है वो न्यूमेरिक फंक्शन के अंडर आएंगे। हमारे सिलेबस में ये 3 तरह के फंक्शंस हैं मैथ फंक्शंस, वो है पावर, राउंड एंड मोड। देयर इज 3 फंक्शंस व्हिच वी विल डिस्कस अंडर दिस टॉपिक, पावर, राउंड एंड मोड। सेकंड इज स्ट्रिंग टाइप फंक्शंस या टेक्सुअल फंक्शन। स्ट्रिंग टाइप फंक्शंस बोलते हैं इनको या हम टेक्सुअल फंक्शंस बोलते हैं। तो इसमें जो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे अपर केस है, लोअर केस है, मिड है, सब स्ट्रिंग है, लेंथ है, लेफ्ट राइट, ऑल दीज आर स्ट्रिंग फंक्शन। जो एक स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर या फिर जो एक स्ट्रिंग टाइप कॉलम के ऊपर फंक्शन अप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग फंक्शन और टेक्सुअल फंक्शन। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस आर डेट एंड टाइम फंक्शन। जो हम डेट टाइप वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे वो होगा डेट एंड टाइम फंक्शन। सो मल्टी रो फंक्शंस, जैसे मैंने अभी बताया जो मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होगा, दीज फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन मल्टीपल रोज एंड जनरेट सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू जनरेट करेंगे, मल्टीपल रोज के ऊपर हम इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मल्टीपल रोज में से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम वैल्यूज क्या है इस रेंज में, मिनिमम वैल्यू, एवरेज,
सम, काउंट, हमने डाटा दिया है, काउंट करना है कि कितने रोज है, काउंट एंड काउंट स्टार. These are the some aggregate functions which we will discuss under this topic. So let me start with math functions, mathematical functions. The first is power. Syntax of power function is power, then column name. Students, if you are applying this function on a table, then you will write the name of the column, column का name जिसके ऊपर आपने power function लगाना है, power या फिर और, ये जो पाइप सिंबल है दिस इज यूज फॉर और एक्सप्रेशन. अगर आप किसी टेबल के कॉलम के ऊपर फंक्शन नहीं लगा रहे हो, आप डायरेक्ट किसी वैल्यू के ऊपर फंक्शन लगा रहे हो, किसी वैल्यू की पावर आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप वैल्यू भी लिख सकते हैं. जैसे आपने पावर निकालनी है 2 की पावर 3, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 2 एंड n इज द पावर वैल्यू, जो उसकी पावर की वैल्यू है. जैसे मैंने अभी बताया 3, 2 की पावर 3, तो हम लिखेंगे 2,3, n is 3. दिस इज द वैल्यू फॉर पावर. For power you can also write POW. In short you can also write POW. So हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं MySQL में लगा के किस तरह से आपने इस फंक्शन को लगाना है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहले किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर फंक्शन लगा रहे हैं. सेलेक्ट इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. हाँ, स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट पावर ऑफ 3,2. It means 3 की पावर 2. So it will calculate and the result is 9. 3 की पावर 2 is 9. आप ये हमने डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर लगा दी, हमने एक्सप्रेशन वैल्यू दे दी यहाँ पे और उसकी पावर 2. और अगर आपने किसी टेबल के ऊपर इसको अप्लाई करना है, सपोज हमारे पास जैसे स्टूडेंट टेबल है और उसमें मार्क्स जो है वो इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट पावर ऑफ मार्क्स कॉमा स्क्वायर. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है कि मार्क्स की हम स्क्वायर कर देंगे. अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा. फ्रॉम किस टेबल का है ये, स्टूडेंट टेबल पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसने इसका स्क्वायर कर दिया. तो मार्क्स की जो वैल्यूज थी सबका स्क्वायर कर दिया, जितने उसमें रिकॉर्ड है सबका स्क्वायर करके इसने आउटपुट हमें डिस्प्ले कर दी. 7 रोज है, 7 रोज में उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दी. अब अगर आप इसके साथ दूसरे फील्ड भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं. सेलेक्ट नेम कॉमा ADDR एड्रेस कॉमा पावर ऑफ मार्क्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेम दे दिया, एड्रेस आ गया और जो मार्क्स टेबल है उसकी पावर उसका स्क्वायर करके इसने डिस्प्ले कर दिया. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं और पावर मेथड को, पावर फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं. तो आपने देखा कि हम किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो पावर को आप POW भी लिख सकते हैं, POWER भी लिख सकते हैं. तो पावर पूरा भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सो दिस इज द power function. Now the second is round function. Student, as you know, a round function it will round off the values. जो हम इसमें पैरामीटर्स में वैल्यूज पास करेंगे उनको राउंड कर देगा. राउंड कहां तक करेगा, ये जो n पैरामीटर है इसमें ये ऑप्शनल है. अगर आप n पैरामीटर नहीं देते हो तो ये उसको इंटीग्रल पोर्शन ही डिस्प्ले करेगा, उसको राउंड ऑफ कर देगा. ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस नहीं डिस्प्ले करेगा. n जो है दैट इज फॉर डेसिमल प्लेसेस, कितनी वैल्यू तक उसको राउंड करे, कितने डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड करे. मान लो 3 का है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको करना है या 1 डेसिमल प्लेसेस तक हम उन्हें इसको राउंड करना है, तो वहां पे वो वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी. So let we see practically how you will apply this function in MySQL. So select
राउंड। स्टूडेंट आप इसको किसी भी केस में लिख सकते हैं, अपर केस में, लोअर केस में, क्योंकि जो MySQL है वो केस सेंसिटिव नहीं है। राउंड ऑफ नंबर मैंने लिखा 89.92, ठीक है। और मैंने इसको पहले कोई भी n वैल्यू नहीं मैंने इसकी दी, डेसिमल प्लेसेस नहीं मैंने दिए, तो इसने इसको 90 डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। मैं इसको 4 2 कर दिया, तो ये 89 इसकी आउटपुट, 89 इसकी आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। 89.92 है, देन इट इज डिस्प्लेइंग 90। इफ इट इज 89.42 देन इट इज डिस्प्ले 89। you know why it's displaying a result like this? Because the value of after decimal place is 9, it is greater than 5। आपको पता कि अगर ये वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो राउंड में इसमें एक नंबर जो बढ़ा देगा। अगर ये 5 से कम है, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 5, तो उसको ये 89 ही शो करेगा जो ओरिजिनल रिजल्ट है। अब सपोज मैं इसको लिख दूं राउंड 45 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करें, मीन मेरे को वैल्यू जो है वो डेसिमल प्लेसेस में ही चाहिए, तो ये इसको डिस्प्ले करेगा 89.5। क्योंकि 4 के बाद 5 आ गया, 5 से क्या करेगा, जो डेसिमल प्लेसेस में फर्स्ट वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देगा, तो इसने उसको इंक्रीज करके क्या कर दिया, 89.5 बन गया, 4 का क्या बन गया, 5 बन गया। अब सपोज यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे हमारे 3 डिजिट है, 4 3 5, और मैंने इसको राउंड किया 1 तक, तो इसने दिया 89.4, क्योंकि इसने राउंड ऑफ नहीं किया। जो फिफ्थ थर्ड डेसिमल प्लेसेस में थर्ड पोजीशन है वहां पे जाके 5 है, थर्ड प्लेस पे 5 है, तो अगर मैं इसको 2 में करूं तब इसने 89.44 डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि टोटल जो है वो डेसिमल प्लेसेस 3 है, सेकंड तक राउंड करना, तो अगले में 5 आ रहा है, तो इसने इसको 4 कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको जो राउंड फंक्शन है वो समझ आ गया होगा। अब मैं इस फंक्शन को टेबल पे भी अप्लाई कर सकता हूं, सेलेक्ट राउंड, और यहां पे मैंने मार्क्स दे दिया, सेलेक्ट मार्क्स, और इसमें डेसिमल प्लेस जो है वो 1 तक इसको राउंड करे, देन फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल में आप इसको कर रहे हैं, स्टूडेंट पे, तो अब ये जो है 89.6 आ गया। तो अगर आप ओरिजिनल वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख के आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी देख सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे है 89.6, और इसको मैंने राउंड किया 1 डेसिमल प्लेस तक, तो 89.6 आ गया। अगर मैं यहाँ पे राउंड की वैल्यू ना देता, ओनली मैं राउंड मार्क्स करता, तो इसने इसको 90 कर देना था, बिकॉज डेसिमल प्लेस इज 6, 5 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे 90 आ जाना था, बट मैंने यहाँ पे डेसिमल प्लेस बोला इसको डिस्प्ले करने के लिए, तो इसने 89.6 डिस्प्ले कर दिया। अगले में 90.4 था, क्योंकि यार उसके साथ 5 है, तो 5 को जब इसने राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे 4 की जगह 5 हो गया, क्योंकि 5 से अगर ज़्यादा वैल्यू होती, 5 होता या इससे ज़्यादा वैल्यू, तो डेसिमल प्लेसेस में एक वैल्यू बढ़ा देगा, तो 90.5 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट में 66 ये भी 5 बन जाएगा, 66.5। नेक्स्ट इज 66.3, जो अगले वाला है वो 3 रह जाएगा, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 है, 5 नहीं है, तो वो 5 से लेस देन है, दैट्स व्हाई इट विल डिस्प्ले 66.3। नेक्स्ट इज 86.5, क्योंकि यहाँ भी नेक्स्ट डिजिट 3 है, तो इसलिए इसको भी 86.5 डिस्प्ले करेगा। अगले वाले में 89.5 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 है। अगर आप इसको यहाँ पे राउंड वैल्यू ये पैरामीटर पास ना करो, आप सीधा लिख दो राउंड मार्क्स, तब ये इसको देखो, ये डेसिमल प्लेसेस हमने कोई नहीं, 0 वैल्यू है वहां पे, तो 90 कर दिया। पिछले केस में उसने उसको
89.6 किया था, लेकिन अब आप देखोगे तो उसको 90 कर दिया, क्योंकि मैंने उसको राउंड ऑफ करना है तो डेसिमल प्लेसेस मैंने कोई भी नहीं दिया, ये 0 मान के चलेगा, डेसिमल प्लेसेस में कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको उसने इंटीग्रल पोर्शन को राउंड ऑफ कर दिया। तो स्टूडेंट ये था हमारा राउंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन जो है दैट इज मोड, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉडुलस। यू नो मॉडुलस हमने पहले भी किया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमने मॉडुलस किया, जिसके लिए हम परसेंटेज को यूज करते थे, ए परसेंटेज बी, ए मॉडुलस बी। अब मॉडुलस क्या है, इट विल डिस्प्ले रिमाइंडर। यहाँ पे मोड फंक्शन में हम दो वैल्यू पास करेंगे, एम और एन। एम और एन को हम पास कर रहे हैं, एम इज ए वैल्यू और उसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं दूसरा नंबर, और उससे जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा। तो इसको भी हम सेलेक्ट के साथ यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। सेलेक्ट मोड ऑफ 23,3, तो 23 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर वैल्यू इसने डिस्प्ले कर दी 2, मॉडुलस वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसी तरह से अगर आप किसी टेबल के कॉलम पे लगा दो, मैंने लिख दिया सेलेक्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय 3, मॉडुलस ऑफ मार्क्स कॉमा 3 फ्रॉम स्टूडेंट। मैंने ये टेबल के ऊपर अप्लाई कर दिया फंक्शन, तो इसने उसको 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगी वो डिस्प्ले कर देगा। तो स्टूडेंट ये हमारा मोड फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन मोड। दीज आर द 3 फंक्शंस। अब यहाँ पे और भी फंक्शंस है इसके, मैथमेटिकल फंक्शंस, साइन वैल्यूज है, कॉस वैल्यूज है, हम फाइंड आउट करने के लिए लगा सकते हैं, बट हमारे जो सिलेबस में है दैट इज these three functions, power, round and mode. So we have not go beyond the syllabus, and we discuss these three functions, power, round and mode. Now the next is textual or string type functions. String type functions, as we already discussed, the functions which are applied on a string type values or textual values, that are string functions. So first is u case और upper। हम u case लिख सकते हैं या upper। सिंटेक्स इज यहाँ पे u case या फिर upper, देन कॉलम नेम। अगर किसी कॉलम की सारी वैल्यूज को आपने अपर केस में, मतलब कि कैपिटल लेटर्स में डिस्प्ले करना है, तो आप कॉलम का नाम दे दो, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपर केस में देखना चाहते हैं तो आप उस स्ट्रिंग को मेंशन कर दो इसके साथ। तो इसके लिए आप यू केस भी लिख सकते हैं और अपर भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट यू केस, देन पास द पैरामीटर। पैरामीटर में हमने सपोज नेम दे दिया, अपर केस में किसको दे, नेम फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में जो नेम है उसको अपर केस में डिस्प्ले करें। ये आ गया अपर केस में, अमित, सुमित, रजत, जो भी नेम्स वहां पे डाले हैं वो उसने अपर केस में डिस्प्ले कर दिया। आप यहाँ पे इसकी जगह अपर भी लिख सकते हो, अपर, उसमें भी आउटपुट सेम आ रही है। तो आप यू केस यूज कर लो या अपर कर लो। अगर आप कॉलम का नेम नहीं है, आपने किसी स्ट्रिंग को देना है, उसको अपर केस में देना है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया स्कूल। मैंने स्कूल स्ट्रिंग लिख दिया, लोअर केस में है, तो इसके आगे से अब मेरे को ये फ्रॉम और स्टूडेंट हटाना पड़ेगा। देन प्रेस एंटर। अब देखो स्कूल को इसने अपर केस में दे दिया। तो जो हमने यहाँ पे सिंटेक्स में यूज किया है कॉलम नेम और स्ट्रिंग। कॉलम नेम में आप टेबल का पूरा कॉलम को अपर केस में डिस्प्ले कर देगा, उस केस में हमें टेबल का नाम साथ में लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट अपर, देन नेम ऑफ द कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट। या फिर साथ में हमने पाइप सिंबल यूज किया है, इसका मीनिंग होता है और आप कॉलम नेम दे दो या फिर किसी स्ट्रिंग को दे दो। तो मैंने स्ट्रिंग का नाम लिखा, मैंने स्कूल दिया यहाँ पे स्ट्रिंग, तो इसने स्कूल को अपर केस में डिस्प्ले कर दिया। सो दिस इज द अपर फंक्शन। नेक्स्ट इज लोअर फंक्शन। जस्ट अपर की जगह आपने लोअर लिखना है या एल केस लिखना है, तो जो भी नेम्स होंगे उनको लोअर केस में डिस्प्ले कर देगा। तो इसमें भी आप उसी तरह से इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट लोअर।
लोअर, और एल केस जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल में लिख दिया लोअर, तो इसको अब ये लोअर केस में डिस्प्ले कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ये सारे का सारा स्ट्रिंग भी अपर केस में हो सकता है या इसका एक पर्टिकुलर करेक्टर भी हो सकता है। मान लो 2 करेक्टर इसके अपर केस में आए, बाकी जो मैंने लोअर केस में दे दिए, तो ये सबको ही लोअर केस में कर देगा। तो यहाँ पे ये लोअर केस में हो गया। इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कर सकते हैं। अगर आपने पूरे का पूरा कॉलम करना है तो यहाँ पे कॉलम का नेम दे दो एल केस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारे के सारे लोअर केस में ये डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो डाटा है उसमें मैंने अमित का ए कैपिटल लिखा था, सुमित का एस कैपिटल लिखा है, हर एक नेम का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल लिखा है। बट जब मैंने इसके ऊपर फंक्शन लगाया सेलेक्ट एल केस लिखा नेम, तो इसने सारे के सारा जो पूरा नेम है उसका वो लोअर केस में डिस्प्ले कर दिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा लोअर केस फंक्शन। नेक्स्ट इज मिड। स्टूडेंट हमारे पास 3 फंक्शन है, मिड, सबस्ट्रिंग एंड SUBSTR। सबस्ट्रिंग को शॉर्ट में SUBSTR भी लिख सकते हैं। मिड है, इन तीनों की जो आउटपुट है वो सेम आएगी। इट विल फाइंड आउट द मिडल स्ट्रिंग। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हमने फाइंड आउट करना है, मिडल स्ट्रिंग हमने लेना है। तो कॉलम नेम, किस कॉलम का आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग निकालना है, और उसके बाद कॉलम नेम, देन एक्सप्रेशन। और स्टूडेंट इसका सिंटेक्स यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे m इसके साथ आगे आना था m,n। यहाँ पे आपको m,n लिखना है, और इसका सिंटेक्स होएगा suppose you are using mid, then you will write mid of column name, तो इसका स्टूडेंट्स जो करेक्ट सिंटेक्स है वो ये होगा, मिड कॉलम नेम स्ट्रिंग देन m इज द वैल्यू फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट टू पिक द स्ट्रिंग। कौन सी लोकेशन से हमने स्ट्रिंग को उठाना, सब स्ट्रिंग है किसी स्ट्रिंग का एक पार्ट, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हमने किसी स्ट्रिंग में से निकालने हैं, तो उसका पार्ट जो है वो कौन सी कैरेक्टर से आपने वैल्यू उठानी स्टार्ट करना है, वो वैल्यू आप यहाँ पे m में दोगे। एंड नेक्स्ट इज n। स्टूडेंट्स n इज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इफ वी हैव राइट समथिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट इट मींस दिस वैल्यू इज ऑप्शनल। अगर आप कहीं पे कोई वैल्यू जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे हैं, इट मींस कि ये वाला पार्ट जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप n वैल्यू नहीं दोगे तो ये m लोकेशन से स्टार्ट करके नेक्स्ट जितने भी कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग में वो सारे डिस्प्ले कर देगा। अगर आपने n वैल्यू दी है इट मींस कि m से लेके n तक, इट विल स्टार्ट फ्रॉम m एंड एंड इज n तक जो वैल्यू आप दोगे n तक के सारे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा। तो हम यहाँ पे इसको स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा स्कूल, कहाँ से स्टार्ट करें, सेकंड कैरेक्टर से उठाइए, और नेक्स्ट 4 कैरेक्टर जो डिस्प्ले करेगा। तो इसमें आउटपुट आ गया CHOO। सेकंड कैरेक्टर जो इसमें स्कूल में है C, सेकंड लोकेशन m की वैल्यू 2 है तो सेकंड कैरेक्टर C आ गया इस स्ट्रिंग में। और उसके बाद नेक्स्ट 4 इंक्लूडिंग दिस वन, C को इंक्लूड करके 4 कैरेक्टर, C हो गया 1 H2OO, तो इसने 4 कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले कर दिए। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू ना दो, जैसे कि मैंने अभी सिंटेक्स में बताया कि ये ऑप्शनल है, तो हमने इसको 2 कर दिया, तो ये रिमेनिंग जितने कैरेक्टर्स है
नाउ इन दिस केस इट डिस्प्ले एल आल्सो। तो पिछले केस में 4 तक थे तो एल को डिस्प्ले नहीं किया इसने, अब जो है वो जितने भी कैरेक्टर्स है उसमें उस सेकंड पोजीशन से लेके वो सारे डिस्प्ले कर दिए। if you applied same function on a table mid, then you will write the name of column। मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया नेम। नेम के सेकंड लोकेशन से ये स्टार्ट करेगा, फोर्थ लोकेशन तक डिस्प्ले करेगा फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे हमने टेबल का नाम दिया। सो स्टूडेंट्स इट विल डिस्प्ले द मिड नेम from second position to fourth। So is now in this time we applied this function on a student table, so it will display output like this MIT on second location you can see in Amit there is M। नेम में सेकंड में है, फर्स्ट नेम है अमित और सेकंड पोजीशन है एम। इट विल स्टार्ट फ्रॉम एम एंड नेक्स्ट 4 करेक्टर। अब इसमें नेम ही 3 करेक्टर 4 करेक्टर का टोटल, यहाँ से आगे 3 करेक्टर्स ही है तो MIT उसका डिस्प्ले कर रहा है ये। देन उमित UMIT 4 करेक्टर, AJAT 4 करेक्टर, and now in next name there is 3 characters MAN, फोर्थ करेक्टर उसमें है ही नहीं, टोटल नेम ही 4 करेक्टर का होगा। अमन नेम होगा यहाँ पे, तो अमन के फर्स्ट करेक्टर ए को इसने छोड़ दिया बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड लोकेशन दैट इज M एंड नेक्स्ट 4। अब नेक्स्ट इसमें फोर्थ करेक्टर है नहीं तो इसमें ये MAN डिस्प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन पता चल गया होगा कि हाउ टू यूज दिस फंक्शन मिड। एंड नाउ द सेम on the place of mid you can write substring। अब आपने इसको यहाँ पे substring लिख दिया, it will display same output। substring किया same output आ जाएगी, same substring। आप इसमें substring की जगह SUBSTR लिख दो, ING हटा दो, then it will display same output। तो टेबल के साथ भी आप तीनों फंक्शन इसी तरह से डिस्प्ले करेगा, मिड एंड सबस्ट्रिंग, इट विल गिव सेम आउटपुट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ। यू नो एज द नेम इंप्लाइज लेंथ, इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर कॉलम और स्ट्रिंग। उस कॉलम की जो वैल्यूज डाली हुई है उनकी लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो डिस्प्ले करेगा। और अगर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग एंटर करते हो तो वो डायरेक्ट स्ट्रिंग की लेंथ डिस्प्ले कर देगा। सेलेक्ट, तो सब स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे अब हम लेंथ लिख देंगे, लेंथ ऑफ स्कूल। तो इसमें कितने कैरेक्टर है, इट विल रिटर्न लेंथ। अब इसमें 6 कैरेक्टर है तो 6 आ गई लेंथ। लेंथ फंक्शन विल रिटर्न द लेंथ। सेलेक्ट लेंथ ऑफ एड्रेस, जो एड्रेस फील्ड है उसकी कितनी लेंथ है, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ टेबल विद फ्रॉम कीवर्ड फ्रॉम स्टूडेंट। तो हर एक फील्ड में जितनी लेंथ है। अब फर्स्ट रिकॉर्ड में जिसमें नेम अमित है उसका जो एड्रेस है वो 3 कैरेक्टर्स का है। इसमें उन्ना है 3 कैरेक्टर का है, नेक्स्ट में उन्ना है 3 कैरेक्टर का है, नेक्स्ट में शिमला है वो 6 कैरेक्टर का है, नेक्स्ट शिमला 6 कैरेक्टर का, नेक्स्ट इज चंडीगढ़ 10 कैरेक्टर्स, लेंथ इज 10 कैरेक्टर, नेक्स्ट इज अगेन चंडीगढ़ दैट इज फॉर 10 कैरेक्टर्स एंड उन्ना इज फॉर 3 कैरेक्टर्स। तो जो कॉलम की लेंथ है हर एक उसकी वैल्यू जो हर एक रो की उसकी लेंथ फाइंड आउट करके ये डिस्प्ले कर देगा। तो स्टूडेंट्स आपको लेंथ फंक्शन भी समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज लेफ्ट।
it will get the string number of characters from a particular string from left hand side. It will pick the given number of characters from a string from left side. Select यहाँ पे हम लेफ्ट कर देते हैं, select left school, then number of characters. लेफ्ट हैंड साइड से 3 characters ये डिस्प्ले करे कि कौन से है, that are SCH. ठीक है, अगर आप सेम जो है वो फील्ड पे लगाओगे, select ADDR एड्रेस के लेफ्ट हैंड साइड से 2 characters डिस्प्ले करे. मैंने यहाँ पे, अगर आपने क्लियर देखना तो यहाँ पे select ADDR एड्रेस कॉमा, मैंने एड्रेस फील्ड को भी डिस्प्ले करवा लिया, उसके नेक्स्ट 2 characters भी लेफ्ट हैंड साइड से डिस्प्ले करवा दिए फ्रॉम स्टूडेंट. अब देखो स्टूडेंट्स, ऊना था मेरा एक्चुअल नेम एड्रेस में, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड से 2 character UN, then again UN, then again SH, then again SH, then next is Chandigarh, 2 characters from left hand side is CH, again CH, then UN. Same you can use right, then it will pick the characters from right hand side. Right, it will display the characters from right hand side. Right hand side say last 2 characters NA, LA, LA, RH, RH and NA. This is right function. Next is in string. Students, in string function is used to get the position of a particular string. हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे दिया, कोई करेक्टर दे दिया, उस पर्टिकुलर करेक्टर की कौन सी पोजीशन है उस स्ट्रिंग में, कौन सी पोजीशन के ऊपर है वो स्ट्रिंग. तो select address, then in string address, then इसमें सपोज मैंने A को फाइंड आउट करना है, तो मैंने कोटेशन में A दे दिया. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस स्ट्रिंग इन दिस कॉलम? इट विल रिटर्न 3. जो A है दैट इज ऑन थर्ड लोकेशन 3, अगेन A ऑन थर्ड लोकेशन, इन शिमला दैट इज ऑन 6th लोकेशन, Shimla on A is on 6th location. The next Chandigarh that is on 3rd location. Again Chandigarh on 3rd location. Una on 3rd location. और स्टूडेंट इसमें मैं A की जगह N कर देता हूँ, तो उसमें वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी. अब यहाँ पे ऊना में N सेकंड पोजीशन पे है, अगेन ऊना में सेकंड है, और शिमला में N कहीं भी नहीं है तो ये 0 देगा. और नेक्स्ट में शिमला में अगेन 0, चंडीगढ़ में 4th पोजीशन पे N है, अगेन चंडीगढ़ में 4th है, ऊना में सेकंड है. स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोट की होगी, जब हमने ये फंक्शन A के साथ अप्लाई किया था तो चंडीगढ़ में A जो है वो 2 बार आ रहा है, तो ये कौन सी पोजीशन रिटर्न करेगा? जहां पे फर्स्ट टाइम उसको वो A मिला, दैट इज ऑन 3rd लोकेशन. उसके बाद आप देख रहे हो 3rd 4 5 6 7 8th लोकेशन पे फिर A है, उसको नहीं डिस्प्ले करेगा. इट विल फाइंड आउट ऑन फर्स्ट, वेयर इट विल फाइंड इट इन ऑन फर्स्ट, देन इट विल डिस्प्ले दैट लोकेशन. फर्स्ट टाइम ए कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो लोकेशन ये डिस्प्ले करेगा यहाँ पे. तो ये आउटपुट में इसका क्वेश्चन आता है, आपको आउटपुट के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे क्वेरी लिखी होगी और वहाँ पे आपने ये पोजीशन बतानी है इसकी कौन सी है. तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये मिला करेक्टर, वो ही आपने डिस्प्ले करना है, उसी की पोजीशन आपने लिखनी है. तो इन स्ट्रिंग आपको समझ आ गया होगा. देन नेक्स्ट इज आर ट्रिम. नेक्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट्स आर ट्रिम. ट्रिम क्या है? इट विल रिमूव द ट्रेलिंग स्पेसिस. स्टूडेंट कई बार हम एंट्री करते हैं, तो एंट्री में हम नेम के आगे या कोई भी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू डाल रहे हैं, तो वहां पे
हम एम्प्टी स्पेसेस दे देते हैं, उसका हमें पता नहीं चलता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट आर ट्रिम, मैंने जब यहाँ पे नाम डाला, आप देखोगे यहाँ पे मैंने स्पेस प्रेस कर दिया, 3 बार मैंने स्पेसिस दे दिया, और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, मैंने लिख दिया सुमित। अब स्टूडेंट इसमें अगर आप देखोगे सुमित की जो लेंथ है इसमें है हमारे 5 करेक्टर, बट अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करें तो ये देगा हमें 8 करेक्टर की, क्योंकि इसमें पहले हम इसके ऊपर लेंथ अप्लाई करते हैं, लेंथ ऑफ सुमित, जो सुमित मैंने यहाँ पे डाला है नेम, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसने यहाँ पे 8 करेक्टर दिए हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि सुमित जो नाम है उसकी टोटल लेंथ है 5 करेक्टर्स की, बट इट इज डिस्प्लेइंग 8 करेक्टर। 8 करेक्टर क्यों डिस्प्ले कर रहा है? क्योंकि उसके आगे हमने स्पेस दे दिया है, तो वो स्पेस को भी एक करेक्टर काउंट करके चलेगा। डबल कोटेशन के अंदर जो भी स्पेसिस दिए उनको ये एक करेक्टर काउंट करके चलेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सुमित स्पेस शर्मा, और उसके बाद मैंने फिर 2 स्पेसिस दे दिए। अब इसकी लेंथ और बढ़ा देगा ये, अब 17 करेक्टर हो गई। 3 करेक्टर मैंने पहले स्पेस दे दिए, 2 लास्ट में दे दिए, 5 और 5 करेक्टर ये 10, 11 ये स्पेस आ गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17 करेक्टर की इसने लेंथ डिस्प्ले कर दी। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता चल गया होगा कि ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें ट्रिम का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? अब हम यहाँ पे ट्रिम लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एल ट्रिम, एल ट्रिम। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये जो स्पेसिस दिए हैं इनको ट्रिम कर देगा। इट मींस कि इसमें से 3 करेक्टर ये सॉरी, अब मैंने इसके साथ लेंथ नहीं लगाई, मैंने जस्ट नेम डिस्प्ले किया। मैंने लिखा एल ट्रिम लेफ्ट हैंड साइड से ट्रिम करके। अगर मैं इसको ये जो मैंने स्पेस दे रखा है इसमें, उसको इसने हटा दिया, ठीक। तो अगर आप इसको ट्रिम ना लगाओ, मैंने कोई फंक्शन नहीं लगाया, मैंने लिखा सेलेक्ट सुमित शर्मा। अब आप देखोगे तो इसके आगे ये स्पेस डिस्प्ले कर रहा है, और एंड में भी स्पेस होगा वो हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका हमें पता नहीं चलेगा एंड कहाँ पे हो रहा है उसका। तो स्टार्टिंग का हमें पता चल गया। इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। सुमित शर्मा मैंने लिखा तो पहली आउटपुट ये जो आ रही है उसके आगे ट्रेलिंग स्पेसिस नहीं है, दूसरे में ट्रेलिंग स्पेसिस है। मैंने यहाँ पे ये आउटपुट डिस्प्ले करवाई, तो यहाँ पे आ रहा है सुमित शर्मा। तो सुमित शर्मा जो ऊपर है, ये जो हेडिंग दे रहा है इसका तो नेम है, यहाँ पे एक्चुअल नेम है। तो अगर आप इसको एल ट्रिम लगा के करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से उसने वो स्पेसिस हटा दिए, जो यहाँ पे स्पेस आ रहा था वो स्पेस अब हट गया। अब अगर आपने इसको देखना है तो लेंथ के साथ आप इसको देख सकते हैं। लेंथ के साथ अब मैं यहाँ पे 2 फंक्शन लगा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेंथ ऑफ सुमित शर्मा, तो इसके नेम की लेंथ 17 करेक्टर आ गई। नाउ वी विल यूज 2 फंक्शंस। लेंथ फाइंड आउट करे, पहले क्या करे, ये एल ट्रिम करे, लेफ्ट ट्रिम सुमित शर्मा। अब मेरे राउंड ब्रैकेट्स 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 ही बंद करनी है आपने। अब स्टूडेंट्स देखो लेंथ जो है वो 14 करेक्टर की दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि फर्स्ट 3 करेक्टर्स इसने इग्नोर कर दिए जो हमने स्पेसिस दे रखे थे, तो उनको ट्रिम कर दिया, हटा दिया उन ट्रेलिंग स्पेसिस को। तो अगले जो है वो इसने काउंट कर दिया। अब लास्ट वाला ये काउंट कर रहा है, क्योंकि 5 करेक्टर का सुमित वर्ड है और 6 करेक्टर का शर्मा है, और ये हो गए आपके 11 करेक्टर, एक स्पेस है 12 और 2 स्पेसिस मैंने लास्ट में दे रखे हैं, तो ये हो गए 14 करेक्टर। तो 14 करेक्टर्स का ये टोटल लेंथ होगी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे एल ट्रिम की जगह आर ट्रिम करूँ तो ये 2 करेक्टर्स को रिमूव करेगा। तो ट्रेलिंग स्पेसिस लास्ट में दिया है, तो अब इसकी लेंथ आ रही है 15। टोटल पहले 17 थी, अब 15 होगी, क्योंकि लास्ट के जो 2 स्पेसिस है उसको इसने रिमूव कर दिया।
अगर स्टूडेंट्स आपने दोनों तरफ के स्पेसेस हटाने हैं तो आप इसको ओनली ट्रिम कर दो, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों हटा देगा, तो ये आ गई 12 कैरेक्टर की लेंथ। अब बीच वाला वो डिस्प्ले करेगा क्योंकि वो उस पूरे नेम के बीच में है, तो ये पूरा इसकी लेंथ जो है वो 12 कैरेक्टर। तो आपको स्टूडेंट्स तीनों फंक्शन समझ आ गए होंगे, आर ट्रिम क्या कर रहा है, एल ट्रिम क्या कर रहा है और ट्रिम क्या कर रहा है। ट्रिम विल रिमूव द ट्रेलिंग स्पेसिस फ्रॉम बोथ साइड्स and R trim will remove the trailing spaces from right side and L trim will remove the trailing spaces from left side। तो स्टूडेंट्स ये हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस थे, और इस टॉपिक में हमने मैथमेटिकल फंक्शंस और टेक्सुअल फंक्शंस डिस्कस किए हैं। जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग डेट टाइप फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस और कुछ एक और एसक्यूएल की क्वेरीज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेकंड यूनिट जो है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 25 मार्क्स का ये यूनिट होगा, तो इसको आपने अच्छे ढंग से कर लेना। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो देन यू कैन कॉल मी पर्सनली, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आपने ध्यान से करना है, और यही टॉपिक है जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ा इजी है। और माई एसक्यूएल जो है जब हम डाटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं वहाँ भी हमें काम आता है, तो इसको आपने बड़ी केयरफुली करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी personally। So, okay, thank you. Stay home, stay safe.